सबको मीडिया फ्रेंड्स को गुड आफ्टरनून। आज हमारा यहाँ में एक स्मॉल प्रेस कॉन्फ्रेंस है टू अनाउंस द जॉइनिंग ऑफ फॉर्मर एमएलए फ्रॉम ब्रह्मा वैली श्री धनंजय त्रिपुरा, जिन्होंने कल अपना रेजिग्नेशन इस्तीफा दिया टू द स्पीकर, ऑनरेबल स्पीकर, और आज वो ऑफिशियली त्रिपुरा मोर्चा पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। विथ मी ऑल्सो इज द प्रेसिडेंट ऑफ त्रिपुरा मोर्चा विजय कुमार रामखौल। यहाँ में हमारे पीएम हैं फ्रॉम ब्रह्मा वैली राजेश त्रिपुरा, एमडीसी श्री रविंद्र देवर्मा, जुनियल देवर्मा, वंश कुमार त्रिपुरा, एंड हमारे विमेन प्रेसिडेंट भी है यहाँ में गणेश देवर्मा, और हमारे विमेन TWF के न्यूली अपॉइंटेड वुमेन प्रेसिडेंट सपना देवर्मा भी यहाँ में है। मीडिया फ्रेंड्स, आपको सबको मालूम होगा कि कल धनंजय त्रिपुरा ने अपना इस्तीफा दिया था ऑनरेबल स्पीकर को, और फॉर्मेलिटी क्लियर होने के बाद आज ऑफिशियली धनंजय त्रिपुरा हैज जॉइन त्रिपुरा मोर्चा। वी वेलकम हिम टू द फैमिली ऑफ त्रिपुरा मोर्चा। वेलकम। हम आपको धनंजय, हम इनको स्वागत करते हैं। एंड आई नाउ लीव द फ्लोर टू धनंजय त्रिपुरा, give a few words to all of you. इसके बाद you can ask any question. We will be happy and most welcome to give you the answer. भाई धन्यवाद सबाइके। आपलं जाणेन आम्ही 2018 पॉलिसी गवर्नमेंटে আমি বিদেশ থেকে এবং আমি আইপিসি 2014 থেকে যেমন প্রথম আমার পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার আমার আইপিসিতে এবং দীর্ঘ 8 বছর ধরে আমি আইপিসির সঙ্গে জড়িত ছিলাম। আজকে গতকালকে আমি নিজে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই মুহূর্তে আমাদের রাজ্যে, আমাদের গোগাগ্রা সকল অংশের মানুষকে নিয়ে আজকে, যেহেতু গোগাগ্রা সবাইকে ডাক দিয়েছে দেশের ত্রিপুরাসা, আমি একজন ত্রিপুরাসা হয়ে যে মহারাজা আমাদের জন্য যে মাঠে নেমেছে, আমাদের জন্য লড়াই করছে, আমি ব্যক্তিগত এই পরিস্থিতিতে মহারাজার সহযোগিতা করা এবং মহারাজাদের কাছে এবং মহারাজার সংগঠনে ত্রিপুরা মোর্চার কাছে সামিল হয়ে কাজ করা এবং মহারাজাদের সহযোগিতা করা, এটা আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবং জানি সবাই আইপিসি যে বিমান এবং আমাদের মহারাজার যে বিমান কোয়েল ত্রিপুরাল্যান্ড গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড, আমাদের মহারাজা যে সকলকে আহ্বান করেন যে আমরা সবাই রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন এবং বিভিন্ন ত্রিপুরাসার উন্নয়নের জন্য লড়াই সংগ্রাম করে মর্যাদা নিয়েছে। আমরা সবাই, আমি এই মুহূর্তে বিভিন্ন আঞ্চলিক দল থাকতে পারে, বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কথা বলতেই পারে, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের মহারাজাকে সহযোগিতা করা এবং মহারাজা একা নয়, আমরা সবাই ত্রিপুরাসা আছে, 12 লক্ষ ত্রিপুরাসা। আমি 12 লক্ষের মধ্যে আমিও এই জননীতিতে আমিও এখানে আছি। এই সময়ে মহারাজাকে সাহায্য করা এবং মহারাজা হাতে হাত মিলে আমরা কাজ করার জন্য আমি প্রস্তুতি নিয়েছি এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবং আজকে আমার সাথে আমাদের টাইমে মিলেই নেতৃত্ব রয়েছেন, আর কমসে কম 100 জনের লিডার রয়েছেন আজকে, এবং আগামী দিনে আসবেন, এবং আগামী দিনে বিভিন্ন দল থেকে আসবে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে আসবে, শুধু আইপিসি নয়। আমি শুধু রাইমে বিলি থেকে নয়, আগামী অন্যান্য গণতন্ত্র বিলি থেকেও, পর্ব থেকেও, এমপি থেকেও,
অনেকটা কয়েকটা জায়গা থেকে বিভিন্ন দল থেকে আমরা আইপিএফটি মহারাজার দলে সামিল হব এবং বিভিন্ন লিডাররা আমার সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছেন এবং বিভিন্ন এমএলএরাও রয়েছেন এবং আমাদের মহারাজার যে উদ্দেশ্য নিয়ে এবং মহারাজের যে আইডিওলজি, মহারাজের যে মিশন, আমরা সবাই সহযোগিতা থাকবো এবং সহযোগিতা করবো, হাতে হাত মিলে আমরা মহারাজার সংগঠন আমরা সামিল হব। সবাই সব লিডাররা এখন যোগাযোগ রয়েছেন, আপনারা দেখবেন। তোমার এটা জাস্ট একটা প্রতিদিন আপনারা দেখছেন বিভিন্ন দল থেকে আসছে। এখন আমাদের মহারাজা ছাড়া এই আমাদের রাজ্যের 12 লক্ষ ত্রিপুরা কেউ মুক্তি দেওয়ার মতো আর কোনো আমি মনে হয় না। বিভিন্ন লিডাররা আছে, বিভিন্ন আইডিওলজি নিয়ে কাজ করে, কিন্তু প্রকৃত লিডার, আমরা প্রকৃত লিডার দরকার। আইপিএফটি হয়তো বা 2009 থেকে দীর্ঘ বছর ধরে একটা আঞ্চলিক দল ত্রিপুরা নিয়ে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছেন, কিন্তু এখন এই মুহূর্তে আইপিএফটি গার্জেন ছাড়া গড় হয়ে গেছে এবং আইপিএফটি সেই গার্জেন ছাড়া গড় এবং কতদিন সেই গড়টা টিকবে এটা সন্দেহ আছে। বর্তমান মহারাজা যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নিয়ে যে উদ্দেশ্য নিয়ে মাঠে নামছেন, আমরা সবাই এই যে ত্রিপুরাসা হিসেবে এবার এই মহারাজার যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড যে ডাক, আমরা সবাই সহযোগিতা এবং প্রস্তুতি নিয়ে এবং মহারাজার সাথে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমি আজকে এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। এমএলএ অস্থায়ী পোস্ট এসে ত্রিপুরাসা আমি দফাই সব থেকে বড়, সেখানে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এমএলএ 5 বছর জন্য এবং দফা হচ্ছে 7 বছর জন্য। সেই জন্য আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং আগামী দিনে আর কিছু লিডার আসবে, আপনারা দেখবেন। सवाल था से मुझे सवाल करना था। 2018 का जो इलेक्शन है तब से आप लोग त्रिपुरालैंड को लेकर आईपीएफटी बीजेपी के साथ अलायंस हुआ है, तो ऐसा क्या हो गया 4.5 साल में जो त्रिपुरालैंड का जो प्लान था आपका वो पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया? एक्चुअली आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा आईपीएफटी गलत किया विदाउट डिटेल। ये आप लोग जानते हैं ये आईपीएफटी का सबसे ज़्यादा यूथ ग्रुप ने काम किया है 2016-17-18 जो त्रिपुरा में सरकार आया था उसका हाथ यूथ आईपीएफटी का। उसके बाद 4 साल में आप लोग देखा है त्रिपुरा स्टेट में क्या हुआ। आज में कंपेन जो घर में उधर गार्जियन तो उस घर में कितने दिन रहेंगे वो सोचने का बात है। इसलिए मैं अभी महाराजा जो ग्रेटर त्रिपुरालैंड जो सबके लिए जो स्पेशली त्रिपुरा के लिए जो अभी फाइट कर रहे हैं, हम लोग एज ए त्रिपुरा अभी महाराजा के साथ हैं, इसलिए मैं अभी महाराजा के साथ में आया हूँ। तो आप लोग जब आईपीएफटी में थे, जब 4.5 साल तक त्रिपुरालैंड के लिए लड़ाई कर रहे थे, तो बीजेपी वालों ने आपका साथ नहीं दिया क्या इसके रिगार्डिंग? आप लोगों ने देखा है आफ्टर इलेक्शन असेंबली में मैं बहुत बार कोशिश किया हूँ और एक्स एमएलए बीजेपी में बहुत बार कोशिश किया है। मेरे एक क्वेश्चन भी है, मैंने त्रिपुरालैंड के लिए क्वेश्चन भी किया, वो भी कैंसिल हुआ, आप लोग जानते हैं। मैं बहुत बार ट्राई किया हूँ क्योंकि जिस घर में गार्जियन है उस घर में से इतना दिन नहीं आप लोग देखा है ये, और मैं बोलने का कोई ज़रूरत भी नहीं, सब लोग जानते हैं। এনসি বাবু তো রয়েছে, এখন আপনি একটু আগে বললেন যে আপনারা কোন অবস্থায়ীভাবে রয়েছেন, এনসি বাবু তো রয়েছে, ওনার প্রতি কি আশা আছে আজ পর্যন্ত? আপনারা জানেন আমাদের এনসি দেববর্মা আমি শ্রদ্ধা করি, সিনিয়র লোক, সেই তো ওখানে অসুস্থ, যদি একজন ফাউন্ডার অফ আইপিএফটি এবং যে গার্জেন তাইলে যদি অসুস্থ তো ওই গার্জেন ওই ভোট কীভাবে চলবে? इस डिमांड को लेकर आईपीएफटी पॉपुलर हुआ था त्रिपुरालैंड, उसको आप लोग फुलफिल क्यों नहीं कर पाए 4.5 साल? और अब एक बार भी आप लोगों ने असेंबली में उठाया नहीं कि
एमएलए के लिए आपने भी ना, मैंने बोला था मैंने क्वेश्चन भी किया था, मेरा क्वेश्चन कैंसिल भी हुआ। मैं उसका फोटो है मेरे पास जो मैंने क्वेश्चन किया है। तो हम लोग ने बहुत बार ट्राई किया है। ये नहीं कि एमएलए लोग जो जिस डिमांड को लेकर हम लोग जिस मुद्दा को लेकर हम लोग लड़ाई कर रहे हैं उस मुद्दा को हम लोग कभी रेस्ट नहीं किया, ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत बार कोशिश किया असेंबली में, क्योंकि मेरा क्वेश्चन भी कैंसिल कर दिया गया। बीजेपी ने क्लियर बोला है वी डोंट सपोर्ट पिपरा लैंड डिमांड, बट ट्राइबल लोगों के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं और उन्होंने निर्मला सीतारमण ने एक पैकेज किया है 1300 करोड़ का, अलग से अलग पैकेज वो लोग बोल रहे हैं। आप लोग कितने इसको देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए आप ये पैकेज वाला ये ना बोलने से अच्छा है। पैकेज लेके हम लोग पिपरा से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। हम लोग मुक्ति चाहिए तो बेटा पिपरा नहीं मिलेगा। मेन मुद्दा महाराजा जितना भी हम लोग के लिए जो काम कर रहे हैं तो इसलिए हम अभी पिपरालैंड ग्रेटर पिपरालैंड अभी महाराजा है गार्जियन हमारा। इस गार्जियन को विश्वास करके हम लोग ने फाइट किया है। उस घर में अभी कमजोर हो, उस घर अभी विदाउट गार्जियन अभी घर हुआ। तो कोई गार्जियन का अलग बात हुआ, गार्जियन और फाइनेंशियल बेनिफिट कितना कैसे डेवलप? आप देखें 4 साल में जो विप्रो में कितना डेवलप है, ये तो मुझे अलग से बोलने का जरूरत है। इसलिए एडिस एरिया में आज क्यों अगरतला में स्मार्ट सिटी होता है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट होता है, तो एडिस में घूमी करो स्मार्ट सिटी वाई Dhananjay, do you feel the development has not happened in the tribal areas under BJP-1? क्या आपको लगता है कि भाजपा के सरकार के जमाने में आपके पूर्वी पार्टी आईपीएफटी मिशन एक पार्टनर, तो भाजपा आईपीएफटी की सरकार में ट्राइबल की डेवलपमेंट हुआ या नहीं? आपको क्या लगता है? एक दूसरा सवाल सर, जब आपने बोला कि विदाउट गार्डियन है आईपीएफ, तो हाल ही में एक मसला सामने आया था कि आपके पूरी पार्टी के एक लीडर प्रेसिडेंट चुने गए थे, उसके बाद आपके फाउंडर लीडर केम बैक एंड सेड आई एम द वैलिड प्रेसिडेंट। काफी चर्चा भी हुआ था। तो क्या आपको लगता है ये जो इंटरनल टेकओवर ऑफ लीडरशिप था आईपीएफटी में, क्या ये कहीं पे रिस्पॉन्सिबल रहा होगा कि आपका आईपीएफटी गार्डियन लिस्ट हो गया? आपको लग रहा है क्या उसमें कुछ इन्फ्लुएंस रहा होगा? देखिए आप लोग वीडियो वालों आप लोग के पास सब लोगों की खबर है, कौन कहाँ क्या कर रहा है, कौन से लीडर क्या हुआ, आप लोग के सब खबर है। मैं एक्स्ट्रा बोलने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। जो अभी त्रिपुरा में जो सरकार के जो डेवलपमेंट के स्पेशल आप बोलो एडिशन में क्यों 5,000 करोड़ भेजे? लास्ट बजट सेशन में 26,000 करोड़ बजट किया है, तो एडिशन में कितना करोड़ दिया? तो इंडिया डेमोक्रेसी कंट्री, यहाँ से इक्वल होना चाहिए, राइट में इक्वल है, सबको इक्वल के देख, डेमोक्रेसी सबके समान है, सबके राइट है। आप अगर में 1,000 करोड़ आप बजट कर सकते हैं, एडिशन में कुमिल में करो। आप अगरतला में स्मार्ट सिटी आप कर सकते हैं, कुमिल में करो। हम लोग पिपरा सर का जो आइडेंटिटी का वो उसके बारे में गवर्नमेंट सोचना चाहिए।